Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So last time we started a new chapter, that was first chapter, Pakistan Zindabad. It was an autobiography, sorry, not autobiography, it was a biography by Sir John Walton, and it was written on the life of Qazi Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder and first Governor General of the state of Pakistan. The chapter started with the incident of 7th August 1947 when a silver aircraft circled over the airport of Malipur and came smoothly into land. And that aircraft was seen by a vast crowd and vast majority of the crowds. First to step out of the aircraft was a tall, dignified man wearing a pure white sherwani. It was Qazi Azam Muhammad Ali Jinnah, the originator and the first Governor General of the state of Pakistan. When he drove through the streets of people, he gave no sign of his feelings. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. His face was calm and serious. He had a sad face on 7th August 1947. So, why did he not give the sign of his feeling? Because he was happy because of the creation of Pakistan, and he was even sad because of the killing of thousands of people who were killed when they were crossing the new borders of their country. Means the world's biggest migration was going to happen during that time when people were migrating from Pakistan to India and then India to Pakistan. So that most of the time people were killed. That's why he was thinking about those people, so he became sad as well. So he was happy and he was sad as well. That's why he was serious without any feeling, because both the things are cancelled out each other. So, but when he went to the balcony of his government house and he saw a sea of people, then he gave no sign of his feelings. But at that time he smiled. In that one smile you can see a warm-hearted man behind the stern Qazi Azam. So that was only one time he smiled on the balcony of government house. So these were the things we discussed in the last class. So this was the first two paragraphs. Then the second page, only the second page पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट, ठीक है. थोड़ा सा ही आधा पेज से भी कम है. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल. मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त तक थक चुके थे और अनहेल्दी थे. फार फ्रॉम वेल मतलब अनहेल्दी थे, बीमार थे. 1948-7 में आपको पता है ना कि उस वक्त बहुत बीमार हो चुके थे और बहुत थक चुके थे ईयर लॉन्ग स्ट्रगल की वजह से. ज़िंदगी भर उन्होंने जदोजहद की पाकिस्तान की क्रिएशन की, जिसकी वजह से वो थक चुके थे और बीमार भी पड़ चुके थे. आखिरी के दिनों में उनको जो है वो टीबी का मर्ज हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस है ना, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, नासाज हो चुकी थी. बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन. लेकिन उनको एक तसल्ली थी इस बात को जान कर कि इनके काम का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है. एक बड़ा काम तो उन्होंने कर लिया पाकिस्तान की क्रिएशन, अगरचे छोटे छोटे काम और भी बाकी थे, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद भी पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, है ना. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में मुताला पाकिस्तान में, द डिफ़िकल्टीज़ फेस बाय पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन. तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, महाजरीन की मुंतकली का मसला और बहुत सारी चीज़ें. तो वो उनको, लेकिन एक बड़ा काम तो हो चुका था, मुल्क की क्रिएशन जो थी. By the force of its determination and leadership, a people who had once been a small defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of Muslim states and the 5th largest nation in the world. कहते हैं कि उनके अज़्म की क़ुव्वत से और उनकी क़यादत की ताकत से वो लोग जो कभी एक छोटे शिकस्त खाए ग्रोह थे, जिनके पास उम्मीद नहीं थी कुछ भी, और जो रह रहे थे एक बैरूनी ताकत के ज़ेर असर, तो वो मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी रियासत बन गए और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कौम बन गए. कहते हैं कि काज़ी आज़म के अज़्म और उनकी क़यादत की बुनियाद पर वो लोग जो कभी शिकस्त खाए ग्रोह थे, तो मुस्लिम जो थे सब कॉन्टिनेंट के, दे वर स्मॉल डिफीटेड ग्रुप. शिकस्त खाए ग्रुप क्यों कह रहे हैं उनको हम? चूँकि आपको पता है 1857 में, 1857 में जब वॉर इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसको इंडिया में गदर कहा जाता है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि मुग़ल बादशाहत ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी, ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़. लेकिन उस लड़ाई में, उस जंग में मुसलमानों को हार हुई थी और मुग़ल बादशाह जो आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, जो शायर भी थे, उनको रंगून, बर्मा के शहर रंगून, उनको जिला वतन कर दिया गया था, ठीक है. तो आखिरकार मुसलमानों की जो है वो हार हो गई थी. तो मुसलमान एक शिकस्त खाए ग्रोह थे जो डिफीटेड हो चुके थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उनके पास उम्मीद नहीं थी ग़ुलामी से बाहर आने की, और उन पर राज करती थी ब्रिटिश राज, बरतानिया हम पर हुकूमत किया करता था. तो
लेकिन यही क़ायद-ए-आज़म की अज़म और उनकी क़यादत की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत हम बन गए और 5वीं सबसे बड़ी रियासत दुनिया की हम बन गए। ठीक है, तो हमारे पास उम्मीद नहीं थी कि हम कभी जो है वो ना अपनी ग़ुलामी से बाहर आएंगे। वी हैड नो होप। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक सेकेंड लेकिन इस चैप्टर को जब इंडियन कहते हैं कि मुसलमान जो थे ना वो ग़ुलामी में इस तरह से जा चुके थे कि वो उनको लगता था कि ग़ुलामी उनके तकदीर का हिस्सा है, उनके मुकद्दर में ग़ुलामी लिखी है और वो ग़ुलामी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो तो भला हुआ कि अल्लामा इकबाल जैसे लोग जो हैं वो मौजूद थे, है ना, इन जो मुसलमानों को मयस्सर थे, जिन्होंने उनको ग़ुलामी की दलदल से बाहर निकाला। ठीक है ना, तो अल्लामा इकबाल ने अशार लिखे बहुत सारे ऐसे जिसकी वजह से उनको ग़ुलामी से आज़ादी मिली। तो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं ग़ुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, करेगा कोई क्या अंदाज़ा उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मतलब वो मुसलमानों को कहते हैं ग़ुलामी आपके मुकद्दर में नहीं है, है ना, आप ग़ुलामी से निकल सकते हो, तकदीर आप अपनी खुद बना सकते हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कि तकदीर आप इंसान खुद बना सकता है, अपनी तकदीर को भी बदल सकता है, इंसान ग़ुलामी से बाहर आ सकता है। तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताओ सुरबा आखिर, कि तकदीर जो है वो इंसान अपने खुद बना सकता है ना, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लोहो कलम वही है किताब है जिस पर इंसानों की तकदीर लिखी गई है ना। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तब लोहो कलम का वाक़या हुआ था, आपको पता होगा, द बुक ऑफ इट, किताब तकदीर लोहे महफूज की बात कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बताया कि तुम अभी तुम्हारे तो उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद अपनी जो है बरकरार रखो, तुम यकीनन एक न एक दिन आएगा तुम आज़ाद हो जाओगे बैरूनी गलबे से, है ना, कि बिल्लस के साथ राब्ते इस्तेवार रख, पे बिस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उम्मीदें ज़रूरी हैं। तो अल्लामा इकबाल जैसे लोग मयस्सर थे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जिसकी वजह से वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर बाहर निकले और पाकिस्तान जैसा एक वतन आज़ाद किया। ठीक है, तो मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत उन्होंने बनाई। आपको पता है पाकिस्तान जब बना था, इट वॉज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम स्टेट, सबसे बड़ी आबादी वाला मुसलमानों की रियासत जो बनी थी ना, मुल्क जो बना था वो पाकिस्तान था, सबसे ज़्यादा आबादी थी। अब नहीं है, लेकिन अब इंडोनेशिया है, बिल्कुल, क्योंकि इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ है और उसमें मुसलमानों पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी उसकी है, इंडोनेशिया की। ठीक है, और उस जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी रियासत थी आबादी के लिहाज से, 5th लार्जेस्ट नेशन थी, अब 6 हो गई है। ठीक है, तो 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and great faith. 70 मिलियन लोग जिनके पास अपना पुकारने के लिए कोई वतन नहीं था, वो रातों रात एक कौम बन गए जिनके अजीम ख्यालात थे और अजीम अकायद थे। 70 मिलियन लोग जिनका अपना कहने के लिए कोई वतन नहीं था, वो रातों रात एक अलग कौम बन गए। मतलब क़ायद-ए-आज़म की कोशिश 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुआ कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। 1940 23 मार्च को 1947 में 7 साल के बाद पूरा वतन आज़ाद हो गया, आपको मिला। मतलब रातों रात, मतलब एक रात में नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये काम हो गया कि 1857 से लेकर हम जो ग़ुलामी का शिकार थे तो 1947 तक शिकार है, 90 साल लगभग हमने ग़ुलामी जो है वो झेली। ठीक है, और उसके बाद फिर सिर्फ 7 साल में जो है मुसलमानों ने आज़ादी हासिल कर ली, जब जद्दोजहद शुरू किया, रेवोल्यूशन जब शुरू हुई, करारदाद पास हुआ लाहौर में, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 70 मिलियन लोगों को एक नया वतन मिल गया। अब यहाँ पर तो 70 million people who had once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and great faith. 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ लोग जिनके पास अपना पुकारने के लिए कोई वतन नहीं था, वो रातों रात एक कौम बन गए जिनके अजीम ख्यालात थे और जिनके अजीम अकायद थे। ठीक है, A few days after he landed in कराची, कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोबारा कराची लैंड किया, वो दोबारा कराची आए। मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो अपने मसाजिद में जाने के लिए, या दूसरे किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हो। जो मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और किसी भी ज़ात से हो सकता है। वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम सब बराबर के शहरी हैं और हम सब शहरी हैं इस रियासत पाकिस्तान के। He was of course reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of God. वो यकीनन याद दहानी करवा रहे थे लोगों को रसूल की तालीमात के बारे में कि तमाम इंसान बराबर हैं जो है अल्लाह ताला की नज़रों में।